Welcome to Standard 6, Subject General Science, Lesson number 14. The name of lesson is Light and the Formation of Shadows. Students, can we see anything in a total darkness? हम अंधेरे में कुछ देख सकते हैं क्या? Answer is no. What help us to see the object around us? हमारे आसपास जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वो हमें किसकी सहायता से किसकी मदद से दिखता है? Obviously with the help of light. What does the light in each one of the picture originate from? यहाँ पर ये जो पिक्चर्स दिखा है उसमें से कौन सा लाइट और वो कहाँ से हमें मिल रहा है वो आपको बताना है. Let us discuss first picture. You will see here the sun. Sun is the natural source of light. हम सबको जो लाइट मिलता है वो सन से ही मिलता है. Second one is the bulb. It is the artificial source of light. Next one is the firefly. करेक्ट. इसको हम काजवा बोलते हैं, जो एक इंसेक्ट होता है जो लाइट देता है. इट इज ऑल्सो द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. एंड फोर्थ वन इज द कैंडल. इट इज अ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट. सो ऑल दिस फोर पिक्चर गिव्स अस लाइट. लेट अस स्टडी द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स व्हिच emit light, meaning those which themselves are the source of light are called luminous object or materials. What is luminous object? luminous मतलब जो हमें लाइट देता है वो. तो ऑब्जेक्ट और मटेरियल विच इमिट लाइट, जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है, बाहर फेंकता है, मीनिंग दोज विच देमसेल्व्स आर अ सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट ऑफ द मटेरियल. The intensity of light is determined by the extent to which the objects emit light. For example, the light emitted by an electric torch is more intense than that obtained from a candle. जो इलेक्ट्रिक टॉर्च में से निकलने वाला जो लाइट है वो कैंडल से ज्यादा ही होता है. The objects or materials that are not source of light themselves are called non-luminous object or material. जो ऑब्जेक्ट और मटेरियल हमें लाइट नहीं देता है उनको बोला जाता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट और मटेरियल. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. लुमिनस ऑब्जेक्ट हमें हमेशा लाइट देता है. द एग्जांपल इज सन, बल्ब, फायरफ्लाई, कैंडल एटसेट्रा. और जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है वो हमें लाइट नहीं देता है. द एग्जांपल इज टेबल, चेयर, हाउस, ऑल दैट थिंग्स. ओके. सम मैन-मेड object or material also emit light. These are called artificial source of light. Now students, we have to learn the natural source of light and artificial source of light. So first one is a artificial source of light, और इसे बोलते हैं man made source of light. Some man made object or materials also emit light. कुछ हमने बनाए जो कुछ ऑब्जेक्ट से, मटेरियल से, वो भी हमें लाइट देते हैं. जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा है बल्ब जो मैन मेड है, कैंडल इज ऑल्सो मैन मेड. So these sources are called artificial source of light. The sun is the main natural source of light. Remember, the sun is the main natural source of light. Other stars seen in the sky, fireflies, some anglerfish, as well as honey mushroom are natural source of light. The natural source of light कौन-कौन से है? Sun, then some other stars, then fireflies and anglerfish are the natural source of light. Next point of the lesson, propagation of light. What is propagation? The propagation of light you may have seen in the afternoon. Rays of light entering through a slit in a door or a small hole in the roof. As these rays of light from the slit or the hole move towards the floor, the dust particles in their way are seen clearly. Due to these particles, the path of the light becomes visible and we can see that their path is along straight lines. Students, just observe this figure, light entering through a window. आपने भी सबने ये जो एक्टिविटी है आपके घर पे ऑब्जर्व की होगी. जो भी दोपहर के वक्त हमारे घर में और मॉर्निंग के टाइम पर भी जो विंडो में से सनलाइट हमारे घर में आता है, वो सनलाइट देखो, ये जो विंडो है हमारे घर में ऐसी होती है, जो यहाँ से हमें लाइट सनलाइट जो अंदर आता है घर में, तो ये ऐसा उसका
प्रोपेगेशन हमें दिखता है। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो लाइट हमारे घर में एंटर होता है हम उसको देख सकते हैं, और उसमें सब हम डस्ट पार्टिकल भी ऑब्जर्व करते हैं, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हमें देखने को मिलते हैं। सो द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। ये लाइट का जो रास्ता है, जो पाथ है जहां से लाइट पास हो रहा है, वो हमें विजिबल होता है। जैसे यहाँ पर हमें आंखों से दिख रहा है कि लाइट यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, एंड वी कैन सी दैट देयर पाथ इज अलोंग स्ट्रेट लाइन। और वो जो पाथ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होता है। दिस इज कॉल्ड द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। Next part of the lesson, let's try this activity. Take 3 cardboards. Make a small hole in the center of each cardboard using a thick needle. आपको इसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया वैसे 3 कार्डबोर्ड्स लेने हैं, उसके सेंटर में आपको होल करना है। Arrange the cardboards in a such a way that the 3 holes are in the same line as shown in the figure number 14.3. जो स्टेप 1 में आपको यहाँ पर फिगर दिखाई गई है, उसी तरह आपको एक जो 3 कार्डबोर्ड से उसको अरेंज करना है, जिसके बीच में आपने सेंटर में एक होल किया है, उनको बराबर ऐसे अरेंज करना है कि आपको जब आप आपके आंखों से यहाँ से फर्स्ट होल में से देखेगी तो आपको ये कैंडल जो यहाँ पर जल रही है वो कैंडल आपको दिखेगी। स्टैंड अ बर्निंग कैंडल ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड लुक एट द फ्लेम ऑफ द कैंडल फ्रॉम द अदर साइड। तो यहाँ से आप आपके आंखों से जो कैंडल जलती हुई कैंडल यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये कैंडल आराम से दिखने वाली है। क्यों? बिकॉज यू हैव सेट अप ऑल दिस 3 कार्डबोर्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने तीनों भी कार्डबोर्ड आपने एक ही लाइन में अरेंज किए हैं, इसलिए आपको ये यहाँ पर जो बर्निंग कैंडल है वो दिखेगी। अब स्टेप 2, नाउ मूव एनी वन ऑफ द कार्डबोर्ड। जैसे फिगर में दिखाया गया है 1 और 3 नंबर का कार्डबोर्ड तो वहां पे ही रखा है, लेकिन जो 2 नंबर का मिडल का कार्डबोर्ड है उन्होंने उसकी जगह डिसलोकेट की, उसको जगह से हिलाया है। Why do you not see the flame? अभी इस क्वेश्चन में आपको ये कार्डबोर्ड में से फर्स्ट कार्डबोर्ड में से जो आपको ये दिखने वाला जो कैंडल था वो यहाँ पे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये जो मिडल वाला कार्डबोर्ड है उसकी जगह आपने चेंज की है। तो ये क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज ये तीनों भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। मतलब इट प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल होता है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए वो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पर वापस नहीं आएगा, इसलिए आपको ये दिखेगा नहीं। It proves that light always pass in a straight line. Next activity, take a straight tube that can be bent easily. एक आपको पाइप जैसा ट्यूब लेना है या कोई भी जो इसे एक्टिविटी में दिखाया गया एक ऑब्जेक्ट लेना है जो इजीली बेंड हो सकता है। As shown in the figure, place a burning candle on a stand. वैसे आपको वापस बर्निंग कैंडल उस पर रखनी है एंड लुक एट इट थ्रू द ट्यूब। यहाँ से आपको देखना है, आपको ये 100% ये जो बर्निंग कैंडल है आपकी आंखों से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में होगी तो दिखेगी। देन बेंड द ट्यूब एंड लुक एट द कैंडल अगेन, व्हाट डू यू सी? वापस आपको क्या करना है, वही कैंडल वहां पे ही रखनी है, लेकिन जो ट्यूब आप इस्तेमाल कर रहे थे, जो पाइप यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे थे देखने के लिए, उसको थोड़ा सा बेंड करना है। नाउ स्टूडेंट सी, ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में था, इसलिए आपको यहाँ पर लाइट दिखेगा। यहाँ पर अभी स्ट्रेट लाइन में है क्या? नहीं है, यहाँ पर आपने इस ट्यूब को बेंड किया है। सो कैन वी सी द कैंडल थ्रू दिस ट्यूब? डेफिनेटली आंसर इज नो। जैसे हमने कार्डबोर्ड में किया है वैसे आपको यहाँ पर भी ये कैंडल दिखेगी नहीं। सो इट अगेन प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड द लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल होता है, इसलिए उसे बोला जाता है द लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द लेसन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट? हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है? द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट आर थ्रोन बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आया समझ में व्हाट इज रिफ्लेक्शन? देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिखा है, हाउ एन ऑब्जेक्ट इज सीन। यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट दिखा है, बल्ब, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हम हमारे आंखों से देख रहे हैं। तो जब ये लाइट का जो भी लाइट होता है वो जब ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, देखो ऐसे
तो ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद हमारे आंखों के वो यहाँ से टकरा के हमारे पास आता है, हमारे आंखों को दिखता है. सो दिस इज हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सी दिस इज द रिफ्लेक्शन. Okay, we see the object when the reflected rays reach our eyes. जब ये मैंने अभी जैसे आपको बताया, जो लाइट यहाँ से निकलेगा ऑब्जेक्ट पे टकरा के जो हमारे आंखों के पास आता है, तभी हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं. मतलब कि आपको पता चलता है टू सी एनी ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर व्हाट, द सोर्स ऑफ लाइट. कोई भी ऑब्जेक्ट हमें देखना है तो हमें क्या लगता है, सोर्स ऑफ लाइट. डू यू नो स्टार्स आर लुमिनस. जो स्टार होते हैं वो लुमिनस होते हैं, वो लाइट देते हैं. प्लैनेट सैटेलाइट्स आर नॉन लुमिनस. सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून reaches us. That is how we can see the moon. We call this light moonlight. Students, just complete this given homework and send the completed homework on my personal WhatsApp number. Thank you.